आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है हैबिटेट, वेरी इम्पोर्टेंट। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हमने नॉन लिविंग फैक्टर्स और लिविंग फैक्टर्स की बात करी थी और 4 लेवल्स की बात की थी। तो हैबिटेट में हम डिस्कस करें कि हैबिटेट होता क्या है, कि the non-living parts of the ecosystem includes the different kinds of habitats such as the air, water and land and variety of abiotic factors. Habitat को हम can be defined as the natural abode or a locality of an animals, plants or the person, and it includes all the features of the environment in a given locality. For example, water is used as a habitat by the aquatic organisms and it comprises 3 major categories. That is major category marine, brackish, freshwater habitat. Each of these categories may be subdivided into the smaller unit, and such as the freshwater habitat may be exist a large lake, a pond, a puddle, a river of stream. Now the land is used as a habitat for the numerous terrestrial organisms and it includes many major categories of the land masses and which are called the biomes. Very important है biomes. Biomes are the distinct large areas of the earth include of the flora and the fauna. Example desert है, tropical forest है, etc. Soil is also used as the habitat by the variety of the microbes, plants and the एनिमल्स। इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं हैबिटेट, यानी कि लैंड में किस तरीके से है, वाटर में किस तरीके से है, तो वो उसके बायोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, उनका क्या हैबिटेट है। ऑल द बायोलॉजिकल, केमिकल एंड द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द स्पीसीज इन्वायरमेंट आर द पार्ट ऑफ द इट्स नीच, यानी कि उनकी पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो किस तरीके से है। द नीच इंक्लूड what the species need to survive and the reproduce in its environment, and what organism eat and how they get food and how they attract mates, where they live and what they do in their environment make up the niche, and the habitat is the part of an the organism niche. A habitat is sometime the consider a species address and the niche is the lifestyle of the species. Now the habitat often overlap and the different organisms can be found in the same location. However, no two species can occupy exactly as the same niche at the same time for very long. If they do, they begin to compete for the same basic and essential environment of the requirements. And you may think that the bird within the tree have the same niche. Careful, the observation will reveal differences. Some bird eat insect and other eat seeds, and some feed beneath and the tree, and while others feed in the tree. Some birds even get their food away from the tree, and the birds may also different method of reproduction, and they may have the different mating behaviors, and they may नेस्ट इन द डिफरेंट स्पोर्ट्स। यानी कि ये हैबिटेट है, हैबिटेट का मैंने डिस्कस किया है टॉपिक कि किस तरीके से जो नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम है किस तरीके से इंक्लूड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैबिटेट, चाहे वो एयर है, वाटर है, लैंड है या वैरायटी ऑफ द बायोटिक फैक्टर्स हैं। तो ये डिफाइन करता है कि हैबिटेट यानी कि जो लोकेलिटी है या एनिमल्स, प्लांट्स या पर्सन की इंक्लूड द ऑल द फीचर ऑफ द इन्वायरमेंट इन गिवन द लोकेलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द हैबिटेट या व्हाट इज़ द हैबिटेट। फिर हमारे पास आता है कैटेगरी ऑफ द इकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था उसी टाइप से है। पहले हमने 4 लेवल्स डिस्कस किए थे, जैसे स्पीसीज था, पॉपुलेशन था, कम्युनिटी था, इकोसिस्टम था। लाइक द सेम वे इकोलॉजी में हम क्या है, एक तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, यानी कि ये 4 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल जो इकोलॉजी है
वो क्या है, हैविंग टू डू विद द रिस्पॉन्स ऑफ द सिंगल स्पीसीज टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज द टेम्परेचर और द लाइट। ओके, ये इकोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल यानी कि जो फिजिकली तौर पर रिस्पॉन्स करे, यानी कि सिंगल स्पीसीज टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में हमारे पास क्या हो सकता है, टेम्परेचर है, लाइट है। नाउ द सेकेंड वन इज़ द पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या है कि यूजुअली फोकसिंग ऑन द एविडेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इंडिविजुअल स्पीसीज एंड द फैक्टर्स दैट कोज सच डिस्ट्रीब्यूशंस। थर्ड पॉइंट, कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या है, हैविंग डू विद द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड एट ए गिवन लोकेशन एंड द इंट्रैक्शन। जैसे पहले उसमें हमने क्या बताया था, स्पीसीज है जो सिंगल सेल, सेल से कंबाइंड टिश्यू, टिश्यू से कंबाइंड ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो उसके बाद ऐसे ही पॉपुलेशन, जब सारी स्पीसीज को इकट्ठा किया जाएगा तो पॉपुलेशन बनेगा, पॉपुलेशन को इकट्ठा करा जाएगा तो कम्युनिटी, और कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाएगा तो इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी में क्या है कि इकोसिस्टम इकोलॉजी having to do with the structure and the function of the entire suite of the microbes, plants and animals and their abiotic environment, and how the parts interact to generate the whole. And this branch of ecology often focusing on the energy and the nutrient flow of the ecosystem, and when approached with the computer analysis एंड द स्टिमुलेशन वी ऑफन कॉल इट सिस्टम इकोलॉजी। ठीक है, ये 4 टाइप्स के हमारे पास थे, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी। इवोल्यूशनरी इकोसिस्टम में क्या है कि ये ऑपरेट है एनी दीज ऑफ लेवल्स मस्ट कॉमनली एट द फिजियोलॉजिकल और द population level in rich and the dynamic area of the ecology, focusing on attempting the understand how the natural selection develop and the structure and the function of the organism and the ecosystem at any these levels। वेरी इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी, इनकी डेफिनेशंस भी आपसे पूछी जा सकती है, एक लेंथी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ध्यान से आप इसकी स्टडी करना। थैंक यू।